class, right? So this is first revision problem. If cot x is equal to minus 5 by 12 and x lies in second quadrant, okay, find the value of other 5 trigonometric functions, right? So this is my problem. So this is based on the concept of trigonometric function, definition of trigonometric functions, okay? Right, in 8.1 we have solved these kind of problems. So this is your problem, you have to solve it, okay? Now try to solve, everyone try to solve. Cot x is given, which is minus 5 by 12, and it is said that x lies in second quadrant. So you have to find the values of tan x, sin x, cot x, or just find the value of sin x and cos x. That's it. Okay. For now, just find the value of sin x and cos x, because tan x is easy, right? Can anyone tell me what is the value of tan x? Tell me, what is the value of tan x? Yes, Tanish. Very good. So it's just reciprocal, right? So minus 12 by 5. That is the value of tan x. Okay, very good. Now find sin x and cos x. Okay, find the value of sin x and cos x. So we know that sin x is equal to p by h and cos x is equal to b by h. Okay, now it is given that it is in second quadrant. Now tell me, I have taught you, right? In second quadrant, which is negative? P is negative or B is negative? Tell me, in second quadrant, P is negative or B is negative? Tell me. Yes, very good. Abhay, you made mistake. Puneet, Nitin, Tanish, Vaishnavi, Krishna, very good. See, second quadrant means x is negative, y-x is positive. So B is negative and P is positive. That's why in second quadrant, sine is positive and cos is negative. Right? You should remember now. All silver teacups. Right? All silver teacups. Got it? So sine will be positive and cos will be negative. So you just have to find the value of h, which is 13. Yes? Yeah. So tell me. Yes, very good. Tan x is reverse of this, which is minus 12 by 5. Sin x will be 12 because perpendicular is 12, right? By 13. It will be positive. And cos x minus 5 by 13. Okay? This is b by p na. Just think about this. Cot hai, b by p hota hai, right? So p is 12. Cos theta kya hota hai? Cos theta is b by h. How can b be more than h? Because 13 by 12 kaise hoga cos theta? ठीक है, खुद सोचो ना, right? So yes, Yashila, very good. सही है. Cos x minus 5 by 13, sin x 12 by 13. ठीक है? Yes, Shash. Class 8. पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? I need to talk to you, I guess, after the class, because you don't even revise the very smallest of any concept. Anyone? Can someone message in the group to everyone? How did we get 13? Can anyone message about the concept that we have studied since class 8? Concept named as Pythagoras theorem. Right? That if perpendicular is given, base is given, perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square.
यशश ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, एक शेयर केयरलेसनेस चाहिए तो, ठीक है, इट इज b square plus b square 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 hypotenuse, right, ठीक है. See, I have told you revision. Revision is very very important. ठीक है everyone. Right? So I guess ये क्वेश्चन हो गया होगा, समझ में आया. So ये कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं हम लोग. चलो बताओ. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3. बताओ जल्दी से. साइन 31 पाई बाई 3. This is your second concept, right? Everyone should try. This is based on angles, right? है ना? Try it. Anyone? Okay, Vaishnavi. Very good. We'll see. Yes, your answer seems right. Okay. So first, see, everyone should try, right? I'll give you hint. Okay. First, okay, Vikas. ठीक है, सही है. So everyone have to convert 31 pi by 3 as 30 plus 1 pi by 3. Yes, which is 15 pi, sorry 10 pi. 10 pi plus pi by 3. है ना? So 10 pi is multiple of 2 pi. तो हम लोगों ने पढ़ा है sin 2 pi plus theta is equal to sin theta. याद है सबको? Right? 180 plus theta minus sin theta, 2 pi plus theta, just sin theta. Yes, so it is your sin pi by 3 only. Pi by 3 is 60 degree, pi is 180, right? Yes, Sai Purvi, sahi answer hai. So the answer is sin 60 degree, which is root 3 by 2. सबको समझ में आया? Yes, विकास, root 3 by 2 लिखना है, ठीक है? तो सबको ये समझ में आया? This is your second concept, right? ठीक है. I've told that we will do revision, तो वही करेंगे. See, right, Bhavani? Today I'll send the videos of all the classes. ठीक है, प्लीज मैंने वही बोला, एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए. 2 पाई मींस पूरा सर्कल कवर हो गया ना, राइट? अब देखो, अगर पूरा सर्कल कवर हो गया है, राइट, पूरा सर्कल कवर हो गया और फिर ये एंगल है थीटा, सो ये पूरा सर्कल प्लस थीटा रहे या सिर्फ थीटा रहे, दोनों का वैल्यू तो सेम रहेगा ना, बिकॉज 2 पाई मींस जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे ही खत्म हो गया, राइट? ठीक है, सो नेट चेंज क्या होगा? जीरो. जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर तुम यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, फिर यहीं पे आ गया, है ना, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम. तो क्या एंगल रहेगा? जीरो, है ना? तो जीरो, 2 पाई, 4 पाई, एवरीथिंग इज जीरो ओनली अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना? इसके आगे कुछ भी होगा वो कंसिडर करेंगे. गॉट इट? सो देखो, sin 31 pi by 3 is equal to sin 10 pi plus pi by 3, है ना? And 10 pi is 2 pi into 5, 5 into 2 pi ना. 10 pi मतलब तुम इस सर्कल के 5 चक्कर लगा रहे हो, है ना, राइट? प्लस pi by 3, so it is just sin pi by 3. ठीक है, just root 3 by 2. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? नेक्स्ट ये ट्राई करो.
राइट? ट्राई दिस कॉन्सेप्ट, अपने से सबको ट्राई करो। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करना है हमें, ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This question, question number 9, everyone try to solve question number 9. यहाँ पे निगेटिव में ना, राइट? साइन 270, ओके, साइन 270 कितना होता है? 270 की माइनस 270 क्या आ रहा है? प्लस की माइनस? साइन चेक करो ना, राइट? अब यहाँ पे कॉस है, कॉस, तो साइन कहाँ से लिख रहे हो? जब कॉस है तो साइन कहाँ से लिख रहे हो? कॉस है ना? ठीक है, सो सबसे पहले कन्वर्ट योर एंगल, ओके, और डिवाइड द एंगल बाय 360 डिग्री, राइट? है ना? सो वी नो दैट, देखो हम लोग पता है ना, 360 into 5 is equal to 1800, है ना? and this is minus 1710 degrees, which is minus 1800 degrees plus 90 degrees. Yes or no? Tell me. Yes or no? Minus 1710 degree is minus 180 degree plus 90 degree. Okay? ठीक है? अब प्लस 360 रहे या माइनस 360 रहे, दोनों का वैल्यू कोई फर्क पड़ता है क्या? ये ऐसे तुम सर्किल कंप्लीट करो, ये ऐसे सर्किल कंप्लीट करो, कोई फर्क पड़ रहा है? टेल मी, जस्ट थिंक अबाउट दिस, कोई डिफरेंस है? नहीं, राइट? कोई डिफरेंस नहीं है ना? नहीं, सो दिस इज योर जस्ट cos 90. cos 90 क्या होता है? 0. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? ठीक है, एनी इश्यूज इन दैट? नो? ठीक है, चलो, वेरी गुड। सो ये एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करने में 30 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? 1 to 5 I'll send away, ठीक है, ऑलरेडी पोस्टेड है, दूसरा जो बुक है ना, ये वो वाला है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी इन गूगल ग्रुप। सो देखो 1 to 5 ऑलरेडी क्या करना है, तुमको क्वाड्रेंट मेंशन कर दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, राइट? और 6 to 10 वैल्यूज निकालने वाला है। गॉट इट? यस और नो? cos minus 270 तो cos 90 होता है ना, सेम चीज तो है। तो cos minus 270 is equal to cos 90, सेम चीज है ना? ठीक है, चलो, तो ये हमारा दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ सी दिस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, राइट? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है? Aditya, it is already uploaded on the Google Drive, right? Google Classroom, ये already uploaded है, ठीक है? Now my question is this, sine of minus x, where x belongs to 0 to 90 degree, ठीक है, 0 to 90 में भी है x का वैल्यू, ठीक है? तो बताओ, साइन माइनस एक्स
क्या होगा? अगर x का वैल्यू 0 से 90 है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 0 होगा, 0 से 90, सो माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट चला गया बताओ? माइनस एक्स which will be, sorry, it will be in which quadrant? Tell me everyone. Minus x, the angle minus x will be in which quadrant if x lies in first quadrant? Tell me. सोचो बताओ. Yes, Krishna, very good. Anyone else? Anyone? It's fourth quadrant ना. See, x का वैल्यू 0 से 90 है, राइट? तो माइनस एक्स निगेटिव हो गया ना, तो माइनस 90 से 0, so माइनस 90 से 0 इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? टेल मी. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव, राइट? बट साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स, एक्स तो 0 से 90 बीच में, तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा, बट इसका वैल्यू नेगेटिव, तो मैं माइनस यहाँ पे लगाऊंगा. गॉट इट? राइट? समझ में आ रहा है? That sin minus x is equal to minus sin x, because sin minus x is in fourth quadrant, but sin x is in first quadrant, right? है ना? तो ये निगेटिव होता है और sin x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को निगेटिव आने के लिए क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है? इन द सेम वे cos of minus x, टेल मी क्या होगा? सोचो एक बार. यस, सी, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है निगेटिव, ऐसे सोचना है. पॉजिटिव ना, ऑल सिल्वर टी कप्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, राइट? और यहाँ पे cos x ये भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, राइट? सो वी कैन राइट cos minus x is equal to cos x. Got it everyone? सबको समझ में आ रहा है? In the same way, tan minus x is equal to क्या हो जाएगा? Tell me. tan minus x क्या हो जाएगा? Yes, very good Vaishnavi. So this is in fourth quadrant, नेगेटिव होता है ना? और यहाँ पे tan x पॉजिटिव होता है, तो माइनस, सो माइनस tan x. Got it? Yes कृष्णा, वैष्णवी, माइनस tan x. तो सबको ये समझ में आया? सबको ये समझ में आ गया? यस और नो? टेल मी. ठीक है, वेरी गुड. नाउ जल्दी जल्दी बताओ जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है. साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स, tan 90 डिग्री माइनस एक्स. ये सब जल्दी जल्दी लिखो, राइट? शाकिब, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, दैट्स व्हाई इट इज माइनस tan x. ओके, फिर साइन 90 डिग्री प्लस x, सब नोट करो और लिखो, इसका वैल्यू बहुत इजी है. cos
90 डिग्री प्लस एक्स tan 90 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है, राइट, यस नाव्या सही है। सो फर्स्ट वन sin 90 डिग्री माइनस एक्स, टेल मी sin 90 डिग्री माइनस एक्स कितना होता है? यस वेरी गुड, cos x, याद है ना, राइट, यस जानवी वेरी गुड, वैष्णवी वेरी गुड, नितिन वेरी गुड, ठीक है। नाउ whenever angle is compared, लिख लो याद रखना, whenever angle is compared, right, with either 90 degree or 270 degree, 90 degree or 270 degree, है ना, right, the ratio will change, ratio will change, ठीक है। Why is it so? If you remember, है ना, if you remember that if angle is taken with respect to y axis, ठीक है, 90 to 70 मतलब क्या हो गया, it is taken with respect to y axis. If any angle is taken with respect to y axis, base will become hypotenuse and base will become perpendicular and perpendicular will become base, है ना, that's why the ratio will change. That's the meaning of complementary ratios. Got it? सबको समझ में आया? So 90 डिग्री और 270 डिग्री, right? 90 और 270, अगर एंगल 90 और 270 से लिया गया तो रेशियो हमेशा चेंज करेगा, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा। गॉट इट? सो ये हो गया वैल्यू। साइन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो जब भी ऐसा करना हो ना तो साइन 90 डिग्री है, कॉस बना दो, बेस बिना सोचे कॉस बना दो, 90 डिग्री दिखा कॉस बना दो ना। अब देखना यहाँ पे साइन क्या होगा, 90 माइनस एक्स, राइट, एक्स का वैल्यू हमेशा 90 से 0 के बीच में है, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, सो ठीक है कॉस। फिर बताओ cos 90 minus x, tell me, yes I put v, सही है, वेरी गुड जानवी, इट इज sin x, ठीक है। tan 90 minus x, yes very good, right, very good, cot x, very good। तो ये तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों समझ में आ गया है ना। चलो अब आते हैं नीचे, sin 90 प्लस एक्स, तो ये बिना सोचे हम लोग ने कर दिया cos x, cos है तो sin x और tan है तो cot x, ठीक है, ये तो वैल्यू हो गया। अब साइन के बारे में सोचेंगे, है ना। ना टेल मी sin 90 डिग्री प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो ये साइन पॉजिटिव होता है, राइट, और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, राइट, ठीक है, क्लियर ये चीज, राइट। नो सेकंड देखो cos 90 प्लस एक्स, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, बट ये sin x तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेल मी, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो cos 90 प्लस x इज माइनस cos x, सॉरी माइनस sin x। गॉट इट? ये सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ना, बिकॉज cos 90 प्लस x निगेटिव है और sin x पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव तो हो नहीं सकता ना, राइट, दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई माइनस साइन विद sin x। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। cos 90 plus x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 plus x is your second quadrant which is negative, है ना, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, so I can say that negative value cannot be equal to positive value because sin x is positive, so we have to multiply sin x with minus sign, ठीक है। got it Krishna? got it everyone?
ठीक है, चलो नाउ tan 90 plus x, yes दर्शन, आदित्य, ठीक है, वैष्णवी, it is minus cot x because again second quadrant tan नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सबको हो गया, 90 वाला हो गया, है ना। 90 वाले में किसी को दिक्कत है? टेल मी, किसी को 90 वाले में दिक्कत है? यस और नो? नो राइट, ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट 180, है ना। 90 के बाद नेक्स्ट हो गया 180। सो देखते हैं, साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 प्लस एक्स, सही, ठीक है ठीक है ठीक है, cos 180 minus x, host one only दर्शन, host one, ठीक है, cos 180 plus x, tan 180 minus x, tan 180 plus x. Now tell me, now in this case the angles are taken from which axis? X axis or y axis? Tell me, x axis or y axis? बताओ क्या लग रहा है? 180 डिग्री है तो एंगल x एक्सिस के कंपैरेटिव में लिया गया है कि y एक्सिस? यस, वेरी गुड, x एक्सिस, यस x एक्सिस, ओके, वेरी गुड। नाउ if it is taken from x axis, right, just think about this, will perpendicular and base change? Tell me, will perpendicular or base change क्या? No, right, है ना। So I can say that if angle is taken with respect to 180 degree or 360 degree, right, ratio will not change, है ना, ratio will not change, ठीक है, ये लिख लेना, ratio will not change। तो जो रेशियो है वही रेशियो रहेगा, मींस इट विल बी, साइन है तो साइन रहेगा, ठीक है, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट साइन की बात आ गई, है ना। तो बताओ साइन 180 माइनस एक्स, विच क्वाड्रेंट? साइन 180 माइनस एक्स, विच क्वाड्रेंट? सेकंड, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है, यस, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नाउ साइन 180 प्लस एक्स, टेल मी, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस एक्स, राइट, साइन निगेटिव हो जाएगा बिकॉज इट इज निगेटिव, यस, वेरी गुड भवानी, अव्य, ठीक है, cos 180 माइनस एक्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सब निगेटिव हो जाएगा ना, निगेटिव, निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस दोनों में। और tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ? tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल सिल्वर टी कप्स, पॉजिटिव, यस, वेरी गुड, राइट, सो पॉजिटिव हो जाएगा, गॉट इट, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, अपने फाउंडेशन के कॉपी में लिखते जाओ सब कुछ, जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ अभी काम नहीं आएगा, ये आराम से 2-3 साल काम आएगा, ठीक है, एटलीस्ट 4 years, इट विल बी यूज्ड फॉर एटलीस्ट 4 years, ठीक है, राइट। सी आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ स्टडी लेस बट स्टडी वेल, ठीक है। See, all means in first quadrant, all ratio are positive, right? Silver means sign. So in second quadrant, only sign and reverse of sign is positive, which is sine and cosec. Third quadrant, T, tan. Only tan and cot is positive, baki everything is negative. Cups, cos. In fourth quadrant, only cos and sec, which is reciprocal of cos, is positive. Then everything is negative. Got it? ठीक है, चलो, तो ये 180 डिग्री हो गया, यस, हो गया ना। चलो नेक्स्ट लेट्स सी,
अबाउट 270। देखते हैं 270 कितने लोग सही सही करते हैं। So this is 270 minus x, 270 plus x, 270 minus x, 270 plus x, 270 minus x, 270 plus x। ना यहाँ पे ये तो है 270, तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब रेशियो चेंज हो जाएगा। तो मैं रेशियो लिख दे रहा हूँ, cos x sin x sin x cot x। चलो बताओ साइन बताओ, ठीक है साइन बता दो। दिस इज योर थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट ना, अभी क्या है ये थर्ड एंड फोर्थ है, थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, सो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सो ये भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेरी गुड, तो ये पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, यस पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। हो गया, इजी है, सबको समझ में आ गया? यस और नो, टेल मी, इजी लग रहा है ना, राइट? किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है, सो नाउ यू नो हाउ एंगल्स आर measured, right? If we have anything you can solve, ठीक है? चलो, now there is, till now we have studied sin x, cos x, right? And some identities. How many identities have we studied till now? Tell me, how many identities? So I'll just write it down, right? I'll write down all the identities. First identity that we have studied was tan x is equal to sin x by cos x, right? Second, cos square x plus sin square x is equal to 1. Third, sec square x minus tan square x is equal to 1. Fourth, cosec square x minus cot square x is equal to 1. Fifth, sin 2x is equal to 2 sin x into cos x is equal to 2 tan x by 1 plus tan square x. Sixth, cos 2x is equal to 1 minus tan square x by 1 plus tan square x is equal to 2 cos square x minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square x, ठीक है? 7th, tan 2x is equal to 2 tan x by 1 minus tan square x, right? है ना? We have studied these identities. Yes or no? Tell me. Have you studied these identities? All of you remember these identities? ठीक है? Okay, very good. So all of us remember these identities. सबको पता है? सबको अपने अपने नोटबुक में लिख लिए? ठीक है, चलो. Now, when you talk about the angles, let's talk about the angles. ठीक है? Suppose if this x, देखो ये जो एंगल है x, right? ठीक है? Okay, because see, just take the screenshot now, or video will be available
on the YouTube, so don't worry. ठीक है, video will be available. So I'll just rub this. Now if I'm having an angle x, ठीक है, just think angle x, then again angle 2x, right, and angle 3x. What do you think? What is 2x? 2x. What is the relationship between 2x and x? Tell me, what is the relation between 2x and x? Just simple answer, right? कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है. Simple क्या है? It's twice of x, है ना? Twice of x, right? What is relationship between 3x and x? Twice of x. So I can say that this is multiple of x. Multiple of x. Yes or no? है ना? 2x and 3x are multiple of x, right? है ना? Got it? So formula of 2x and 3x are called as multiple formula. Multiple, right? Multiple angle formula. Angle formula. Got it? है ना? So we have studied about 2x, 3x. Next year पढ़ेंगे. अभी 2x पढ़ रहे हैं. ठीक है? Got it? So this is called as multiple angle formula. ठीक है? Got it? Now in the same way, अगर x है, x by 2, right? It is called as sub multiple. इसको फ्रैक्शन ना कर सब मल्टीपल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सब मल्टीपल. right? Sub multiple. ठीक है? So if you have to find the value of sin x by 2, ठीक है, या cos x by 2, इसका फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर या बस देख लेंगे एक बार. बट इट इज कॉल्ड एज सब मल्टीपल एंगल्स. सब मल्टीपल एंगल्स. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? व्हाट इज मल्टीपल एंगल, व्हाट इज सब मल्टीपल एंगल? यस और नो? टेल मी. एवरीवन इज गेटिंग दिस? व्हाट इज मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल? यस, वेरी गुड. ठीक है, चलो. Okay, now suppose I'm having angle x and angle y. If I'm adding them, x plus y, or subtracting them, x minus y, right? Then what it is called? It is called as compound angle now, right? Because you are compounding them. Compound angles. Okay, right? So if I'm having two different angles, right? And if I'm adding it or subtracting it, and then finding the ratio, then it is called as compound angle formula. ठीक है, compound angle formula. Suppose I'm having cos x, ठीक है, and cos y, sin x and sin y. ठीक है, I'm having these values, right? And you are asked to find what is the value of cos x plus y. ठीक है, या cos x minus y, या sin x plus y, या sin x minus y, right? So बताओ, these formulas are called as, क्या बोलेंगे इसको? These formulas are called as, बताओ क्या बोलेंगे? Yes, Vikas, 4x will also be multiple angle, right? Now tell me, yes, Navya, this is called as compound angle formulas, है ना? So obviously इसका कुछ formula होगा in terms of these four, है ना? Right? Cos x कुछ formula होगा, cos x sin x, cos y sin y के terms में, cos x minus y का formula होगा इन चारों के terms में, because we can find the value of cos x sin x, cos y sin y, है ना? तो इन सबका फॉर्मूला होगा इन चारों के फॉर्म में, राइट? सबको समझ में आ रहा है? इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ. सबमर्जिंग, यस, यू कैन से. सी, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई टर्म या पैरामीटर का नाम दिया जाता है, तो जिसने दिया, जैसा दिया हम लोग वैसा पढ़ लेते हैं. ठीक है,
Got it? Now we will see each formula one by one, right? So तुम लोग अभी के लिए बस लिख लो, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो पहला फॉर्मूला cos x प्लस वाई, ठीक है? और एक्चुअली देखा जाए ना, तुमको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, राइट? We will remember only one formula and we will derive every other formula with that one formula. Yes, are you ready? Tell me, are you ready? ठीक है? So एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है? सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, cos x plus y, ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है? क्या होता है? cos x into cos y minus sin x into sin y. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? अब देखो, अब मैं कैसे सारे फॉर्मूले ड्राइव करता हूँ, सिर्फ इस फॉर्मूले से, ठीक है? नाउ जस्ट थिंक ऑफ दिस, थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगाओ और बताओ, cos x minus y का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो इस फॉर्मूले से, राइट? कैन यू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ cos x minus y? क्या हो रहा है? cos x minus y में क्या हो रहा है? y की जगह क्या आ जा रहा है? टेल मी, y की जगह क्या आ गया? If you compare first with second, first formula with second formula, right? What has changed? Instead of y, right? Minus y आ गया है, तो फॉर्मूले में जहां भी y है वहां पे माइनस y डाल दो. यस वैष्णवी, वेरी गुड, सही आंसर, ठीक है? जहां भी फॉर्मूले में y आया है वहां पे माइनस y डाल दो, राइट? फिर देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है? सबको ही करेगा, सबको ही ट्राई करेगा. यस, वेरी गुड, ठीक है? वेरी गुड, राइट? नाव्या, जानवी, विकास, सब सही है, बिकॉज ये हो गया cos x, x में कुछ नहीं होगा, इनटू cos माइनस y. अभी हमने देखा cos माइनस y इज cos y ना नितिन? cos माइनस y इज cos y ना, राइट? अभी पढ़ा था हमने, cos माइनस y इज इक्वल टू जस्ट cos y. फर्स्ट हम लोगों ने यही स्टार्ट किया था, ठीक है? तो cos माइनस y इज cos y ओनली, cos y. Now minus sin x into sin minus y, sin minus y. So we know that sin minus y is minus sin y, है ना? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो ये हो गया प्लस और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है? Got it? So it will be just sin y. So this is the formula, right? So बीच वाला माइनस बस प्लस बन जाता है. सबको ये समझ में आया? प्रहलाद, आदित्य, गलत हो गया? ठीक है, सेम फॉर्मूला बस उल्टा लिख दिया तुमने, ठीक है? आदित्य समझ में आया? सबको समझ में आया ये चीज, राइट? ठीक है, भावेश, अनघा, जिलान, नलिशा, अहद, नंदिनी, सृष्टि, सृष्टि समझ में आ रहा है? यशस, पुनीत, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड. सी, फाउंडेशन के लेक्चर्स तुम लोग प्लीज एक दो बार देखो, हर हफ्ते में एक दो बार देखो, ठीक है? राइट? वी कैन डिराइव ऑल द कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज. इससे सारे कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज ड्राइव कर सकते हो, सारे. जस्ट देखो, अब देखो, मैं साइन एक्स प्लस वाई ड्राइव करना चाहता हूँ, राइट? ठीक है, सो ये पूछो एक्स प्लस वाई. नहीं विकास,
cos x into y एक ही एंगल हो गया ना, cos x into y तो एक ही एंगल है, 10 into 15 150 वो तो एक ही एंगल है, ठीक है, तो अलग अलग क्यों होगा, है ना, राइट। ये यहाँ भी एक ही एंगल है, बट इट इज यूज्ड टू फाइंड सम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, राइट। सो cos x into y का कोई फॉर्मूला नहीं है एज सच, a into b का फॉर्मूला नहीं है एज सच, ठीक है। नाउ sin x plus y, ठीक है, so just think about this, just think about this, sin x plus y, can you write cos 90 degree minus x plus y is equal to sin x plus y? Tell me yes or no, yes or no, cos 90 minus theta is equal to sin theta, yes or no? समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, sin x plus y is cos 90 minus x plus y, because cos 90 minus theta is equal to sin theta, है ना, मैंने वो फॉर्मूला यूज कर दिया, cos 90 डिग्री minus theta is equal to sin theta, ठीक है, yes, ठीक है। now this can be written as cos 90 डिग्री minus x, इसको एक मान लो, एक मान लो, minus y, yes or no, tell me, लिख सकते हैं 90 minus x plus y, तो 90 minus x minus y लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, राइट, लिख सकते हैं, ठीक है, किसमें दिक्कत है इसमें, अब बताओ ये वाला 90 minus x minus y ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला, टेल मी व्हिच फॉर्मूला आई कैन यूज, सेकंड वन और फर्स्ट वन, टेल मी व्हिच फॉर्मूला आई कैन यूज, सेकंड वन और फर्स्ट वन, सेकंड वन, यस वेरी गुड नितिन, और x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, टेल मी व्हाट वी विल राइट इन प्लेस ऑफ x, 90 माइनस एक्स ना नाव्या, ये पूरा का पूरा है ना, सी ये पूरा का पूरा ये जो है, राइट, ये x की जगह पे हो रहा है ना, इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस, जस्ट थिंक ये पूरा 90 माइनस एक्स x की जगह पे हो रहा है ना, यस वेरी गुड, ठीक है, तो अभी रखते हैं cos x की जगह पे क्या लिखा हमने 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स इनटू cos y प्लस sin x की जगह पे 90 माइनस एक्स इंटू sin y, ठीक है, यस सबको समझ में आ रहा है, बताओ आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो, टेल मी, मैंने बस x की जगह 90 माइनस एक्स रख दिया बिकॉज इट्स एन एंगल ना, राइट, इट्स द एंगल, अब एंगल की जगह तुम 10 डिग्री रखो, 15 डिग्री रखो, 40 डिग्री रखो, कुछ भी रखो, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट, फॉर्मूला है ना, x की जगह पे 90 माइनस एक्स रखेंगे, है ना, राइट, तो we just wrote, right, or replaced x with 90 minus x, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस, नव्या देखो यहाँ पे 90 माइनस y लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही 90 है ना, 90 माइनस x प्लस y, either you can write 90 माइनस x माइनस y और 90 माइनस y माइनस x, ठीक है, राइट, कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने 90 माइनस x माइनस y लिखा, ठीक है, तो क्या हो गया cos 90 माइनस x, टेल मी कितना होता है, sin x इंटू cos y प्लस ये cos x इंटू sin y, समझ में आया, yes or no, tell me, so this is the formula for sin x plus
y, राइट? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सी cos 90 माइनस एक्स, साकिब cos 90 माइनस एक्स अभी पढ़ा ना हमने, cos 90 माइनस एक्स sin x हो जाएगा, राइट? cos y तो cos y हो गया और sin 90 माइनस एक्स cos x हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है? ठीक है, चलो ओके, नाउ अब एक लास्ट, ठीक है, राइट? उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर करेंगे साइन एक्स माइनस वाई, इसका सोच लो क्या करना है, साइन एक्स प्लस वाई में वाई की जगह माइनस डाल देना है। वेरी गुड भवानी, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वैष्णवी, इजी है। सो वाई की जगह माइनस वाई डाल देंगे, क्या हो जाएगा, पहला वाला तो सिम रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, है ना, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस cos x into sin y, यस, राइट? सबको इतना समझ में आ गया? चल में सबको इतना समझ में आ गया, आया कि नहीं बताओ? इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एक अगर आता है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके निकाल सकते हैं, याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है, राइट? बट यू शुड नो हाउ टू डिराइव, इट्स इजी, ठीक है, चलो, सो टेक दिस 5-10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट? थोड़ा सा घूम लो, बिकॉज थोड़ा सा आराम होना चाहिए आंख को भी, ठीक है? सो वी विल अगेन ज्वाइन एट 11:10 AM, ठीक है, 11:10 पे, so take 10 minutes of break, right? You can leave and join again before 11:10, ठीक है, क्लास ऑन रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा घूम लो, just give break to your eyes, okay, right? Yeah, it will be on only, right? क्लास तक नहीं होगा, ठीक है, okay, शीर्षा, you got it, you got this, ठीक है, साइन माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, दैट्स व्हाई वहां पे माइनस आ गया, ओके, राइट एवरीवन, ओके, नाउ आई होप एवरीवन इज हियर, सो नेक्स्ट लेट्स सी हु कैन सॉल्व tan x plus y, tell me, tan x plus y, you don't have to derive any other formula, it's already there, right? You just have to use it. What do you think, what is the formula of tan x plus y? Tell me, anyone? In terms of tan only, in terms of tan, in terms, wait, of tan. So we know that tan x plus y is yes or no, tell me, yes or no? Yes Vaishnavi, but you have to derive it. This, all of you agree with this? Yes, and we know the formula of sine x plus y, which is sine x cos y plus cos x sin y whole divided by, and we know the formula of cos x plus y also, which is cos x cos y minus
साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये सबको समझ में आया? मैंने बस लिख दिया है, सबको समझ में आया ये? कृष्णा वो नहीं होता है, गलत है वो, ठीक है। अब बताओ, now you have to convert everything in terms of tan। अब ध्यान दो, tan x क्या होगा? ऐसे सिंपल, tan x क्या होगा? इट विल बी sin x by cos x, ऐसे सोचो। और tan y क्या होगा? tan y is sin x, सॉरी sin y by cos y। yes or no? tell me yes or no। yes, सबको समझ में आ रहा है? So what you have to do is you have to divide both numerator and denominator by cos x and cos y, ठीक है। You have to divide both numerator and denominator। Wait, I'll just write numerator and denominator separately, ठीक है। So you have to divide both numerator and denominator with cos x and cos y। cos y plus cos x into sin y divided by cos x into cos y whole divided by cos x into cos y minus sin x into sin y divided by cos x into cos y, ठीक है। You understood this step? Yes or no? Tell me, you understood this step? We just divided both numerator and denominator by cos x and cos y. Why? Because I want to convert sin x into tan x. So if you want to convert sin x into tan x, what you have to do? You have to divide by cos x now. And if you have to convert sin y into tan y, you have to divide by cos y. Yes, plus cos x and cos y. It is just cos x and cos y. Cos x into cos y, not plus, into cos y. It is into cos y. We will see, right? कट जाएगा ना? Got it? यहां तक सबको समझ में आया प्रहलाद? ठीक है, अब ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप इज योर आंसर। नेक्स्ट स्टेप इज योर आंसर, ठीक है। ध्यान दो, इट विल बी व्हाट? इट विल बी sin x by cos x plus sin y by cos y। Now because sin x by cos x चाहिए ना, फिर cos x by sin x, देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे sin x है और cos y है, यहाँ पे cos x और sin y है, तो cos cos तो कट जाएगा, cos cos तो कट जाता है, बट sin x को tan में कन्वर्ट करना है ना, राइट? तो sin x को cos x से डिवाइड करना पड़ता और sin y को cos y से डिवाइड करना पड़ता, इसलिए हम लोग दोनों लिए हैं। गॉट इट? तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, sin x इंटू cos y। देखो ध्यान दो, एक एक स्टेप। sin x इंटू cos y बाई cos x cos y कट गया, यस। फिर cos x इंटू sin y बाई cos x कट गया, यू आर लेफ्ट विथ sin x by cos x प्लस sin y by cos y। ये समझ में आया? न्यूमरेटर समझ में आया सबको? टेल मी, न्यूमरेटर समझ में आया? cos y कट गया, यहाँ पे cos x कट गया। यस और नो? टेल मी, ये सबको समझ में आ रहा है? देखो, a प्लस बी बाई सी क्या होता है? a बाई सी प्लस b बाई सी होता है ना? होता है कि नहीं होता है? बचपन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने? a प्लस b बाई सी इज a बाई सी प्लस b बाई सी। दैट्स वाई cos x cos y दोनों में डिवाइड हो रहा है ना, तो एक में cos y कट जाएगा और एक में sin cos x कट जाएगा, ठीक है। नाउ अब डिनोमिनेटर में देखो, cos x into cos y डिवाइड बाय cos x into cos y क्या हो जाएगा? टेल मी, cos x into cos y डिवाइड बाय cos x into cos y क्या हो जाएगा? एनीवन? मैसेज बताओ। फर्स्ट टर्म ये भी cos x cos y, ये भी cos x cos y, 1 हो जाएगा ना, 1। प्रहलाद cos x cos y है ये, cos x cos y डिवाइड बाय cos x cos y 1 माइनस ये क्या हो गया, sin x by cos x into sin y by cos y। हो गया ये? बताओ सबको समझ में आया? कन्वर्ट हो गया हर चीज tan में?
बताओ हुआ कि नहीं हुआ? राइट तो लास्ट अब बस फॉर्मूला लिखना बाकी है, तो क्या हो गया? tan x प्लस tan y होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। आ गया फॉर्मूला? सब कुछ हो गया कन्वर्ट tan के फॉर्म में, राइट? तो तुमको इतना नहीं करना, तुमको बस ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिमाग पे जोर पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि भाई कैसे हो रहा है, राइट? यही चाहते हैं हम कि दिमाग पे थोड़ा जोर पड़े, राइट? सोचो एंड देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, राइट? चलो अब तुम सब कोई अपने से tan x माइनस वाई का निकाल लो। चलो, राइट? tan x माइनस वाई में क्या करना, पूरा sin x माइनस वाई में cos x माइनस वाई करने की जरूरत नहीं है। tan x माइनस वाई के लिए tan x प्लस वाई में माइनस डाल देना। यस, वेरी गुड भवानी। ठीक है, सही है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x plus tan y by, yes वैष्णवी वेरी गुड, tan x into tan y। तुमको यहाँ पे tan x माइनस वाई चाहिए, अब x माइनस वाई, तो प्लस वाई की जगह माइनस वाई डाल दो, एज सिंपल एज दैट, राइट? बताओ, सबको बताएगा? भवानी और वैष्णवी बता दिए है, बाकी सब टेल मी। y की जगह माइनस वाई डाल दो, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। व्हाट इज tan माइनस वाई? क्या होता है? माइनस tan y होता है ना, माइनस tan y। पुट कर दो, क्या हो जाएगा? Yes, very good. So now we are very good. So it will be tan x minus tan y divided by 1 minus की जगह प्लस हो जाएगा, है ना? tan x into tan y। वेरी गुड। सो हमारा कंपाउंड एंगल भी खत्म हो गया है। ठीक है, राइट? अब हमें इतना फॉर्मूला हो गया, अब हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे? देखो, तुमसे पूछ दिया जाए फाइंड, पूछ दिया जाए तुमसे, ठीक है? सबको दिमाग लगाएगा अभी। फाइंड साइन 15 डिग्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन tan 75 डिग्री निकालो। चलो, फाइंड sin 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। थिंक, फाइंड द वैल्यू। ये एप्लीकेशन हो गया अब, ठीक है? सोचो, इट विल बी सॉल्व बाय व्हाटएवर वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ। जो पढ़ा है हमने उसी से बनेगा, ठीक है? तो बता सकता है कैसे करेंगे पहला वाला sin 15 डिग्री? एनीवन? किसी को दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि क्या, कैसे, क्या होगा? बिकॉज we know values of which angles, 0, 30, 45, 60, 90, that's it। हमें बस इतना ही पता है फिलहाल के लिए, हमें 15 निकालना है। यस यशीला, वेरी गुड, राइट? है ना? सॉल्व इट। एनीवन एल्स? यस तनिष, वेरी गुड। तनिष, यू मैसेज इन एवरीवन, ठीक है? सो यू कैन यूज बोथ, either you can write it as sin 45 degree minus 30 degree, right? Or you can use sin 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना? दोनों में से कोई भी यूज कर लो। फिर फॉर्मूला पता है तुमको? निकालो सबको निकालो, जल्दी से सबको निकालो। आई वांट द आंसर, है ना? राइट? कृष्णा, मैंने अभी सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला नहीं पढ़ाया ना, राइट? ये सब मल्टीपल हो गया ना, 30/2 पता ही नहीं है ना हमें वैल्यू, ठीक है? sin x/2 का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया ना अभी मैंने, राइट? वो पढ़ाऊंगा भी नहीं इस क्लास में अभी, मतलब 9th में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। भवानी, साइन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, ये तो रहेगा ना, पढ़े ना हम लोग, that sin theta lies between -1 to 1, so obviously it should not be greater than 1।
ठीक है वैष्णवी, सही लग रहा है? थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। फॉर्मूला पुट कर दो ना, फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला पुट, ये देखो क्या होता है, देखते हैं। राइट, ये वाला यूज करके देख रहे हैं हम लोग, ये यूज करके देख रहे हैं। राइट, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, बस फॉर्मूला पुट कर दिया। यस, वेरी गुड। सो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन 30 कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। सिंपल हो गया, तो √3 माइनस 1/2√2, दैट्स द आंसर। यस और नो, टेल मी, सबका ये आंसर आया, √3 माइनस 1/2√2। √3 माइनस 1 ना नितिन, माइनस है, माइनस बीच में होगा, है कि नहीं, फॉर्मूले में माइनस है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, इजी लग रहा है? बताओ, लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसे ही छोड़ दो यशस, जस्ट लीव इट एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का 1/8 नहीं होगा ना, राइट, रैशनलाइज करने के बाद होगा ना, ऊपर वाला तो रहेगा ही 2 में, राइट, तो ये यहाँ तक छोड़ देना है। अहद समझ में आ रहा है तुमको, अहद है भी कि नहीं? यस, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड वाला, सब कुछ सेकंड वाला सॉल्व करेगा, सेकंड वाला क्वेश्चन में 2 सॉल्व करेगा अब। जैती खुद सोचो ना, हाउ कैन यू राइट 75 डिग्री, जस्ट थिंक अबाउट दिस, हाउ कैन यू राइट 75 डिग्री? वी नो द वैल्यू ऑफ व्हाट, विकास ब्रैकेट में होगा ना, ब्रैकेट में है वो। ठीक है, ये पाप मत करना। tan a plus b is not equal to tan a plus tan b। ठीक है, ये पाप नहीं होता है। First of all, convert this. Yes, Prahlad, very good. 75, we can write 75 as, tell me. 75 can be written as 45 degree plus 30 degree. Yes or no? Because we know the value of 45 and 30. Yes? Yes, very good, right? Then formula tan A plus tan B. It will be tan 45 degree plus tan 30 degree whole divided by, बताओ, 1 minus tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, यस और नो? यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फॉर्मूला पुट कर दो, tan 45 1 हो गया, प्लस tan 30 1/√3 हो गया, डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 1 इंटू 1/√3। सो एलसीएम लेकर √3 प्लस 1/√3 -1 आ जाएगा, और 1 नहीं ना, 1 प्लस 1/√3 है ना नितिन, √3 माइनस प्लस 1/√3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यस भवानी, वेरी गुड। तो सबको समझ में आया कैसे यूज करना है? सबको समझ में आया कि हाउ डू वी यूज दिस कंपाउंड एंगल फॉर्मूला? टेल मी। ठीक है, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। नाउ अब ध्यान दो, राइट, अब ध्यान दो, हमने तुम्हें बताया कि फॉर्मूला ऑफ sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। यस और नो, टेल मी, होता है ना? तो कुछ लोग पूछे जैसे इसका डेरिवेशन क्या है, राइट, अब देखो, अब समझ में आ गया है, sin 2x लिख sin x plus x,
लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? टेल मी। आ गया सेम चीज? आया? अब समझ में आया? sin 2x कैन बी रिटन एज sin x plus x, तो हम लोग कंपाउंड एंगल से ही ड्राइव कर सकते हैं मल्टीपल एंगल। यस और नो, टेल मी। राइट? क्या तुम एक फॉर्मूले से सब कुछ ड्राइव कर सकते हो? अब समझ में आ रहा है कैसे हम एक फॉर्मूले से सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं? सिर्फ एक फॉर्मूला, बिकॉज सी व्हेन यू स्टडी दिस ट्रिग्नोमेट्री इन हायर क्लासेस ना, यू विल बी लाइक अरे सर इतना फॉर्मूला है, कैसे याद रखे, क्या करें? माय सेम कॉन्सेप्ट इज रिमेंबर वन फॉर्मूला, राइट? ठीक है, देन derive it. Sin 2x is not equal to 2 sin x ना? Yes, it's not equal to 2 sin x, it's equal to 2 sin x into cos x. ठीक है, चलो, so we have completed this topic. ठीक है, ये हमारा हो गया है, right? And we have completed everything. सब कुछ खत्म हो चुका है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, so today was the last class. ये सब ड्राइव हो गया है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ये बुक अपलोडेड है तो एक बार देख लेना। नो इट्स नॉट 2 sin x into cos x ना यार, 2xy plus xy क्या होता है? जस्ट थिंक अबाउट दिस ना, राइट? xy plus xy क्या होता है? 2x into 2y होता है क्या? कि जस्ट 2xy होता है, राइट? ठीक है, नाउ जिसको ध्यान दो, मैंने ऑलरेडी कर रखा है sin x sin y का, जिसको भी मल्टीपल 3x 3y वाला चाहिए, राइट? ध्यान दो, देखो ये नहीं पढ़ना है अभी, बट अगेन अगर किसी को मन करे तो 3x अभी मैंने ड्राइव किया ना, sin 2x कैसे ड्राइव किया बताओ? sin 2x कैसे ड्राइव किया? sin x plus x किया तो sin 3x क्या हो जाएगा बताओ? sin 2x plus x हो जाएगा, राइट? बस फिर फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, बट जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। ठीक है, छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं बस मेथड सिखा रहा हूँ। ठीक है, no no class is not over, I was just giving a time to think, okay, right? You can hear me, right? चलो, so हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ, ध्यान दो, देखो ये सब फॉर्मूला ड्राइव्ड होता है, हम अभी नहीं कर रहे हैं ये सब फॉर्मूला। ठीक है, वी आर नॉट डूइंग दीज फॉर्मूलाज, राइट? वी आर नॉट डूइंग दीज फॉर्मूलाज फॉर नाउ। ठीक है, यू कैन डिराइव दोज फॉर्मूलाज आल्सो बाय द वे, राइट? हम लोग सब ड्राइव कर सकते हैं। ध्यान दो, ये फॉर्मूला, अच्छा एक चीज बताओ,
यस यस यशस वी विल लर्न, राइट। बहुत इजी है, मैंने क्लास 7th को पढ़ा दिया है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, डू वी नो दीज फॉर्मूलाज? एवरीवन जस्ट रिस्पॉन्ड, डू वी नो दीज फॉर्मूलाज? टेल मी, डू वी नो दीज फॉर्मूलाज, यस और नो? yes we do know these formulas, है ना, right? cos x plus cos y और add subtract करके ये सब formulas आ जा रहे हैं, है ना, right? so these are your derived formulas जिसको तुम याद रख सकते हो। ठीक है, चलो। सो हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो, मतलब ये सब कुछ खत्म हो गया है। ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो एल। ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। ये फॉर्मूला ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 10? यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यूज। सबको समझ में आया ना? यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। Just tell me the value, anyone who have solved, right? So have you proved? Yes, yes, have you proved, right? 3, you just have to put the value na. Sin pi by x is sin how many? Sin 30 degree into sec 60 degree, right? See 5 pi by 6, yes, convert कर लो ना, 5 into 180 by 6, tell me, 30, which is 150 degree. So 150 degree can be written as 180 minus 30 degree, है ना, और 90 degree plus 6 degree. Got it? Right? Right? So 150 can be written as 180 minus 30 और 90 plus 60. Got it everyone? So यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। Okay, very good. So either it is, ठीक है, so we know what is 180 minus theta और 90 plus theta both, है ना? So sin 150 can be written as, बताओ, cos 30, है ना, और सॉरी sin 30, it can be written as sin 30 sin 180 minus 30 degree, which is sin 30 degree, और sin 90 degree plus 60 degree is equal to cos 60 degree. दोनों सही है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। नो यशस, इतना ही कर लो, बहुत है, ठीक है, राइट? सी, मैं सबको बोल रहा हूँ, कम सीखो अच्छे से सीखो, ठीक है, कम सीखो अच्छे से सीखो, अदरवाइज कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा ड्राइव हो गया। नाउ sin 15 अभी हम लोगों ने निकाल लिया, राइट? ये सॉल्व करो, tan 13 पाई बाई 12,
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट, सी तुम लोग जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। 13 पाई बाई 12 कैन बी रिटन एज, याद है, पाई प्लस पाई बाई 12। पाई कितना होता है 180 डिग्री, माइनस पाई बाई 12 विच इज 180 बाई 12, कितना हो गया? यस, 15 डिग्री। ठीक है, tan 15 हो गया ये, वेरी गुड। 180 माइनस 12 इट इज माइनस tan 15 ना, माइनस tan 15, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सो माइनस tan 15, राइट। 2 माइनस रूट 3 आ रहा है लोगों का, ठीक है। कौन से मेथड से किया? सेम ही चीज होगा ना, जो भी करोगे तो सेम चीज होगा ना, राइट। पाई प्लस पाई बाई 12, राइट, विच इज ओके थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी माय बैड, पाई प्लस था, सॉरी माय बैड, दैट इज पाई प्लस, तो प्लस हो गया ना, स्टूपिड मी, इट्स जस्ट प्लस, मैंने माइनस क्यों लिख दिया, सो डोंट मिस्टेक, प्लस प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो प्लस हो गया, सॉरी, ठीक है। बट x प्लस वाई है ना वैष्णवी, माइनस कहां से हो गया? ठीक है, चेक चेक देख लो एक बार, सबको यही आना चाहिए, 2 माइनस रूट 3 आना चाहिए, एक बार चेक कर लो ना, राइट। 3 पाई बाई 12 नहीं, पाई प्लस पाई बाई 12, ठीक है प्रहलाद, 13 है ना वो, तो 13 कैन बी रिटन एज 12 प्लस 1, ठीक है। सेम चीज हो गया नाव्या, सेम ही चीज हो गया ना, क्या ही दिक्कत है, सेम चीज हो गया, तुमने डिग्री के टर्म्स में कर दिया है, राइट, अदरवाइज इट्स सेम ना, ठीक है। चलो, सो ये सब हो जाएगा, ठीक है। ये सब एक बार एग्जांपल्स देख लेना है, एग्जांपल्स घर पे बैठ के एक बार देख लेना है, ठीक है। सो ये होमवर्क इज, राइट, 3.4 का सारा क्वेश्चन नहीं ट्राई करना है, मैं बस बता दे रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन ट्राई करना है, राइट। तुम लोग नोट कर लो तो वीडियो देख के बाद में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करना है पूरा इसका, 1 to 5 करना है पूरा, ठीक है, 1 to 5 ये पूरा करना है, 1 to 5 कर लो, बाकी ट्राई करो, बाकी कंपलसरी नहीं है, बाकी ऑप्शनल है, मन करे तो ट्राई करना, नहीं मन करे तो छोड़ देना, राइट। बट 1 to 5 कंपलसरी है, बट अगर जिसको सीखना अच्छे से ना, वो टोटल 1 to 21 ट्राई कर सकता है, राइट। मजा आएगा सॉल्व करने में फॉर्मूला से करके, तो जिसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, राइट, वो करेगा। सो आज का होमवर्क जो है हमारा, ठीक है, वो 3.2 में 10 क्वेश्चन है और 3.3 में 5 क्वेश्चन है, तो टोटल 15 क्वेश्चन है। एक वीक में 15 क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? 1 वीक 15 प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम्स पर डे, होगा कि नहीं होगा? टेल मी, होगा कि नहीं होगा? नाउ जिसने चैप्टर वो दूसरे वाले एक्सरसाइज का जिसने नहीं किया है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट, बिकॉज वो भी कंप्लीट करना था ना, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी 3 वीक्स दिए हुए थे, राइट, ठीक है। सो अभी तक तुम लोगों में से किसी ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, कुछ लोगों ने बस किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने किया है। सो ये मैं चेक करूंगा 19 तक सब कुछ सबमिट हो जाना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, हो जाएगा 19 जुलाई तक ट्रिग्नोमेट्री का हर चीज सबमिट होना चाहिए, राइट, ठीक है। दूसरे एक्सरसाइज का पूरा और इसका सिर्फ 3.1 3.2 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। आगे उतना नहीं करना, बस हो गया इतना ही करना है, बाकी तुमको मन करे तो कर लो, ठीक है। चलो, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ट्रिग्नोमेट्री, सबको समझ में आया होगा कि क्या है, कैसा है, क्या यूज होता है, सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाथ उठा लो, आया ना? बताओ, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है क्या? लग रहा है बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अगर तुम डेली रिवीजन करोगे और अच्छे से हर क्लास अटेंड किए हो, तो इतना हार्ड नहीं लगा होगा, है ना?
राइट, बट अगर भूल जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट, हमारा जो एजुकेशन है इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स लाइक वी डोंट रिवाइज। ओके अफसा, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है, पुराने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियोस हैं, ये आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। एंड सी आई एम सेइंग यू ट्राई टू सब्सक्राइब, राइट, तुमको मिलते रहेगा, मैं बार बार लिंक नहीं भेज पाऊंगा ना, राइट, तो सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने वेक्टर्स कर लिया क्या नितिन, वेक्टर्स कर लिया क्या, हमारा वेक्टर्स खत्म हो चुका है, यस और नो बताओ जल्दी से, क्योंकि मुझे याद नहीं है एक्चुअली, नहीं ना। सो वी विल स्टार्ट वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है, राइट, ओके, चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू, राइट, होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई जस्ट सेंड द यूट्यूब लिंक, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है, राइट, आई वोंट गेट एनीथिंग इफ यू सब्सक्राइब, इट्स जस्ट तुम्हारे प्लेलिस्ट में रहेगा, तो मुझे बार बार लिंक नहीं भेजना पड़ेगा, ठीक है, चलो बाय एवरीवन, एंड इफ पॉसिबल थैंक यू सर। सब्सक्राइब टू माय कुकिंग चैनल, ठीक है।